السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، شہر قائد کے موسم نے ایک مرتبہ پھر کروٹ بدل لی ہے اور اس سے پہلے گرد آلود ہوائیں چل رہی تھیں جس نے ہر چیز کو گرد آلود کر دیا تھا اور ہلکی پھلکی بارش ہوئی۔ مونسون کے ایک چھوٹے سے سسٹم نے انٹری دی جس کے ساتھ ذرا سی بارش نے پورے شہر کو گندے جوہڑ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی وہ راستہ جو 15-20 منٹ کا تھا، آدھے گھنٹے کا تھا، وہ پھیل کے اب 2-2 گھنٹوں کا ہو گیا ہے اور جو صورتحال ہے اس وقت سڑکوں کی وہ انتہائی خراب ہے اور ہر جگہ پانی جمع ہوا ہے۔ شہر قائد کے لوگ کیا سوچیں، کیسے وہ بارش کو انجوائے کریں جب ان کے قدموں تلے گٹر کا پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف بجلی کی جو بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہاں کے شہریوں کے لیے۔ جگہ جگہ احتجاج کر رہے ہیں، اسی بارش اور اسی گندے پانی میں کھڑے ہو کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں جس میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچے بھی شامل ہیں، بزرگان بھی شامل ہیں۔ میئر کراچی ایک مرتبہ پھر کہیں نظر نہیں آ رہے، بس وہ دعوے ہیں، وعدے ہیں اور پھر وعدے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی نے وزیر اعلیٰ صاحب کو خط لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 1.5 سال گزرنے کے باوجود ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی نہیں بنا سکی ہے اور سندھ جو حکومت ہے وہ NDMA کے ایکٹ 2010 کی خلاف ورزی کری۔ یہ آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کہاں پر بہتری لائی جا سکتی ہے، کیا کوئی اچھی تجویز ہمارے پروگرام کے تھرو، اس پلیٹ فارم کے تھرو کہیں صاحب اقتدار کے کانوں تک اگر پہنچا سکیں ہم تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں رانا گلزار تاج صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ تجزیہ کار محمد اشرف میمن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ آپ دونوں حضرات کو بہت خوش آمدید کہیں گے اور بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی رانا گلزار تاج صاحب آپ سے۔ رانا صاحب، وہی مسئلہ، بارش بجائے رحمت کے زحمت بن جاتی ہے اور جو یونین کاؤنسلز کی جو کارکردگیاں جو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ پیچ ورک کر دیا، ہم نے یہ سڑک بنا دی، ہم نے یہ سیوریج کا کام کر دیا، ایک ذرا سی چھینٹے پڑتے ہیں بارش کے اور جو صورتحال ہے وہ بالکل ہی الگ دکھائی دینے لگتی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شمائلہ نواز صاحب، آپ کا، آپ کے چینل کا، مہربانی۔ دیکھیے، میٹرو چینل کراچی کا ایک مشہور چینل ہے اور بلدیات کی بڑی کلیدی نظر رکھتا ہے، بڑی گہری نظر رکھتا ہے بلدیاتی ایشوز پر، اور اس کا محور یہی ہے کہ یہ بلدیاتی مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ شہر میں بارش ہوئی اور پانی بھی کھڑا ہوا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کے پاس بھی میں نے دیکھا ہے، 1-2 جگہوں پہ اور دیکھا ہے، بیت المکرم پر بھی ایسا ہے۔ بالکل پانی کو ہمیں فوری طور پہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، جہاں پر روڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے اس کو فوری طور پہ مکمل کرنا چاہیے۔ وہ تو میئر صاحب نے روک دیا نا وفاق کے منصوبوں کو۔ دیکھیں، اگر ان کو روک دیا ہے تو پھر یہ جو پانی ان میں بھرے گا، پھر اس میں خرابی پیدا ہوگی، اس میں کوئی گفتگو کر کے اس کو مکمل فٹافٹ کیا جائے تاکہ پرابلم نہ ہو۔ میئر صاحب نے اگر روکا ہے تو خود نہیں، کوئی نہ کوئی انہوں نے خوبی خامی بتائی ہوگی تو اس وجہ سے ہی اس کو روکا گیا ہوگا۔ مگر شہر میں دوسری جگہوں پر جو صورتحال ہے اس کو قابو کیا جائے تو اس میں سب کی ذمہ داری، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے پاس بھی ٹاؤن ہیں، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں، تحریک انصاف کے پاس بھی ہیں، ہم سب مل کر برسر اقتدار ہیں شہر کراچی میں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بلا تاک رکھ کر کہ ذمہ داری کس کی ہے اور کس کی نہیں، کہ اس مسائل کو حل کریں۔ ہم آپس میں جو رسہ کشی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ جو لفظوں کی گولہ باری کرتے ہیں، اس سے کام ڈسٹرب ہوتا ہے اور عوام پریشان ہوتی ہے۔ بھئی دیکھیے، عوام نے تو ووٹ دیا ہے، عوام نے جماعت اسلامی کو بھی ووٹ دیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی دیا ہے، تحریک انصاف کو بھی دیا ہے، تو وہ ووٹ دے کر اس پریشانی کا شکار کیوں ہیں؟ تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہوگا، میئر صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ میئر صاحب، میں پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ فیلئر تمام ٹاؤنز میں، سٹی میں ایڈمنسٹریشن فیلئر ہے۔ وہ ایڈمنسٹریشن فیلئر اس طرح سے ہے کہ جو ان کے آئیں بائیں دائیں جو افسران ہیں وہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو مس گائیڈ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ عوامی نمائندے ہیں اور یہ عوام کے اسی مسائل کو دیکھتے ہوئے ہی اقتدار میں آئے ہیں، تو ان
अफसरों की बातों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उन अफसरों की बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। ठेकेदार, इंजीनियर्स और जो भी लोग हैं उनको खुद वो जाएं, चेक एंड बैलेंस करें। उनको मैंने कहा ना कि रोडों पर आएं, कमरे में न बैठें और रिपोर्टों पे काम न करें, खुद जाकर चेक करें। जब तक ये नहीं करेंगे ये हाल ऐसा ही रहेगा। खुद जाना होगा, खुद चेक करना पड़ेगा, इंजीनियर्स को भी और सबको, और आपको डंडा उठाना पड़ेगा सबको। ठीक है राना गुलजार ताज साहब, तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि तमाम इदारों पे जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक जो हालात हैं वो ऐसे ही रहेंगे, और सख्ती कौन करेगा ये भी आप बखूबी जानते हैं। अशरफ मेमन साहब, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, क्या वाकई हर चीज को करवाने के लिए डंडा उठाने की जरूरत है कि जब तक सर पे तलवार नहीं लटकती रहेगी तब तक कोई काम नहीं होगा? तो फिर ऐसे इदारों में जो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन और पता नहीं कौन कौन से ओहदे जो किए जाते हैं, जो कि लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, वो किस मर्ज की दवा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि राना साहब ने थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की है। वो बज़ाहिर देखें, ये पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध हुकूमत का हिस्सा है और इनके तजर्बे, इनके मुशाहिदे, इनके एक्सपीरियंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है। जो भी मसाइल हैं, जो फंड्स हैं या जो भी काम हो रहा है, तो ये सुपरविजन जितनी भी है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है या कहीं प्रोविंशियल की है। अच्छा, अब ये कोई पहली दफा तो नहीं है कि जो डंडा आप उठाएंगे और बात करेंगे या इस तरह की कोई बात हम कर सकते हैं। बात ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियारात पूरे मिलने चाहिए। जो डिवीज़न हमने किए हुए हैं और जितने भी मुख्तलिफ पीटीआई के हों, जमात इस्लामी को हैं, ये सारे लोग अपने अपने इलाके के रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, बाख्तियार भी होने चाहिए, उनको फंड भी मिलना चाहिए। अब हमारे यहाँ जो अभी तक बात हो रही थी कि भाई ये जो अपने शिफ्टिंग नहीं हुई, फंड्स की शिफ्टिंग नहीं हुई, इख्तियारात की शिफ्टिंग नहीं हुई, प्रोविंशियल को तो ये सारे इख्तियारात मिल गए, तो ये एक सबसे बड़ा तो मसला ये है। और दूसरा ये है कि कंट्रोल चले मेयर साहब के पास है या सिंध गवर्नमेंट के पास है, तो उसका काम है ना। अभी बारिश तो इतनी हुई नहीं, आज आप भी आए हैं फिजिकली, मैं भी आया हूँ, राना साहब भी आए हैं, हम सब इस बात का रोना रो रहे हैं कि रास्ता कितना डिफिकल्ट हो गया। 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता है, आपको 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, अब ये बात हमेशा से करते रहे हैं और हर दफा ये बात इतनी शिद्दत से ही होती है। अच्छा, इसको रियलाइजेशन इसलिए नहीं किया जा रहा कि उनको पता है कि ये हुकूमत हमारी है, हमें कोई पूछने के लिए किसी का इख्तियार नहीं है। हम आप ये जितने भी अहबाब हैं किसी न किस तरह इस शहर का हिस्सा है और वो किसी न किस तरह से उनकी कंट्रीब्यूशन है, बज़ाहिर डायरेक्ट ना सही, इस सिटीजन के होते हुए हमारा कोई ना कोई राइट्स तो है ना। हम अपनी बात तो कहने का हक रखते हैं और हम करेंगे और उसी शिद्दत से करेंगे क्योंकि तकलीफ आवाम की है। अभी लाइट की बात आपने की है, देखें अभी मैं सुबह था पाक कॉलोनी की जुडिक्शन इलाके में था, 4 घंटे लाइट नहीं आई, वहां कुछ मेरा वेलफेयर का एक चल रहा था काम। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि लोग अगर 6-6 घंटे, और आज गर्मी भी बहुत थी, हब्स भी बहुत 2 दिन से बहुत ज्यादा, जी हाँ, आज और कल भी था। तो अब मेरे कहने का मकसद ये कि ये सारी चीजें जो हैं, अच्छा कहीं कहीं तो फुल फ्लेज आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन लोगों को भी शिकायत है क्योंकि वो पूरी तरह से उसको एडमिनिस्ट्रेशन देख नहीं रही। अच्छा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है? आपकी केएमसी है, फिर आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, तो वो सारा इनके इख्तियार में, जिसको चाहे ट्रांसफर करें, जिसको चाहे ये फैसिलिटेट करें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इख्तियारात तो बहरहाल हैं, पीपल्स पार्टी की ही सिंध हुकूमत भी है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का। अक्सर हम यही सवाल उठाते हैं कि जब सब कुछ आपके हाथ में है तो फिर मसाइल कौन हल करेगा? जाहिर है जिम्मेदार भी आप ही होंगे ना। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि साबिक वफाकी वज़ीर शब्बीर कायम खानी साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया। MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, खुशामदीद कहेंगे शब्बीर कायम खानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर कायम खानी साहब। जी वालेकुम सलाम। शबीर साहब, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई जैसे कि पहले हमने देखा, लेकिन जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बारिश होने जैसी ही या शायद उससे कहीं ज़्यादा नज़र आ रही। पूरा का पूरा शहर जो है वो गंदे जोहड़ में तब्दील हो चुका है। कैसे देखते हैं आप कारकर्दगी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी शमाइला, आपने खुद ने फरमा दिया कि बारिश इतनी कोई ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन इस पर जो शहर की हालात है वो आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, आप यकीन करें कि अभी शाम से ट्रैफिक जाम है कराची में
ठीक है। और इतने लोग परेशान हैं, हजारों लोग, लाखों लोग परेशान हैं जो ट्रैफिक में इस वक्त भी फंसे हुए हैं। मैं खुद, आप यकीन कीजिएगा, भादराबाद से मेरे घर का जो रास्ता मुसाफत है वो सिर्फ 15 मिनट है मुश्किल से, लेकिन मैं खुद 2.5 घंटे में बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा हूँ। तो आप यकीन करें कि जिस कदर जो लोग परेशान हैं, एम्बुलेंस फंसी हुई है, उसमें मरीज हैं जो बेचारे दम तोड़ रहे हैं, कोई उनको रास्ता देने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस गायब है, जो तनख्वाहें लेती है, पता नहीं किन नायल लोगों को भर्ती किया हुआ है, जो बारिश होती है गायब हो जाते हैं। ये तो कराची के शहरी हैं ऐसे बेचारे जो वॉलंटरी खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी जो तनख्वाहें लेते हैं वो लोग गायब हैं, वो हराम खा रहे हैं। तो आप देखें कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बारिशें होती हैं, लेकिन वहां पर कभी भी इस तरह से जिंदगी मुतासर नहीं होती। जब कराची में चंद मिनटों की बारिश के बाद कराची तबाही का शिकार हो जाता है। अच्छा, ये वो सूरत हाल होती है शबीर साहब जिसमें जो शरपसंद अनासर होते हैं वो भी बड़े एक्टिव हो जाते हैं। अगर एक जगह कुछ लोग नेकी कमा रहे हैं तो दूसरी जगह जो डकैतियां और जो लूट मार की वारदातें हैं वो भी बड़े तसलसल के साथ होती है, क्योंकि कई गाड़ियां खराब हमने खुद देखी। बिल्कुल आपने वजह फरमाया और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा भी है कई इलाकों के अंदर लूटमार करते हैं, बजाय के वो शहरियों की मदद करें जो परेशान लोग हैं। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, यकीन जानिए कि शायद अगर ये प्रोग्राम अब आप मुझसे अगर 2 घंटे पहले पूछ रहे तो शायद मेरा गुस्सा और कहीं ज्यादा था। उसकी वजह ये थी कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था। अक्सर हम देखते हैं कि किस तरह लोग बेचारे, हम तो अपनी गाड़ियों में बैठे थे, लोग किस तरह, खवातीन मोटरसाइकिलें बंद हो जाती है पानी में, पानी खड़ा हो जाता है। पानी असल पहली बात है तो पानी रुकता क्यों है? 18 साल से ये सिंध हुकूमत इक्तिदार पर काबिज है, सिंध हुकूमत। उसके बाद फिर इनकी शहरी हुकूमत भी इनके पास है। ये दावे तो बुलंदवाला करते हैं, लेकिन ये इन्हीं की जिम्मेदारी है। नाले साफ करते नहीं है, रोड टूट जाते हैं, अस्तरकारी करते नहीं है, हर बारिश में रोड बह जाते हैं। तो इनके इतने मुंह हराम लग गया। मैं क्या कहूँ, इतने बेशर्म और ढीठ लोग हैं ये। शायद लफ्ज बेशर्म अच्छा, मैं समझता हूँ छोटा। शबीर साहब, ये जो यूनियन काउंसिल्स हैं इनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? मतलब आपने भी तो कई जगहों पे आप लोगों का भी बड़ा होल्ड है, आपके भी कई इलाके हैं, तो तकरीबन ऑन एंड ऑफ तो चीजें एक जैसी ही नजर आती हैं हमें। नहीं शमाना, ऐसी बात नहीं है। देखें, एक तो ये सब लोग जानते हैं कि हमने बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, और क्यों नहीं लिया था वो भी सबको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्क्रिमिनेशन करके हल्का बंदी की थी और अपने मनपसंद के हल्के बनाए। हमने कहा कि आप हल्का बंदी, सबसे पहली बात तो कराची की जो सेंसिस है उसको सही कर लें, और कराची की हल्का बंदी आप सही कर लें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्होंने ये बात हमारी मानी, तो फिर हमने क्या फायदा? जब प्री पोल मतलब यानी कि अगर रिगिंग ये कर रहे हैं तो हम इलेक्शन लड़के अपने पैसे और अपने तवानाई क्यों जाया करें? खैर ये अलग बहस है, फिर कभी किसी मौजूद में बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि हम लोग जो है ना, अभी इस वक्त हम सूबाई हुकूमत में हम एमपी हमारे मौजूद हैं, और एमपी आप देखें तो आप ऑपोजिशन बेंचेस पे तो मौजूद है ना शबीर साहब? सुने ना, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जो अपोजिशन का रोल है वो अदा कर रहे हैं ना। कौन सा ऐसा मौजू है जिसपे हमारे अरकान असेंबली मसला तो फिर वही का वही है, मसला हल थोड़ी हो रहा है शबीर कायम खानी साहब। सुन तो लें, ये मसला हल करना हमारे इख्तियार में नहीं है ना। ये तो मसला हल इख्तियार करना सीएम साहब के पास है। ये 18वीं तरमीम के बाद सारे पैसे जो डिविजिबल पूल है, जो प्रोविंशियल पीएफसी, वो इनको मिलते हैं सारे पैसे। अब सारे पैसे इनके पास है, ये खर्च ये करे ना काम, ये काम करते ही नहीं है, इनका एक विजन ही नहीं है। तो इन्होंने तबाह किया। नीचे जो यूसीज हैं, जो नीचे जो टाउन्स हैं, वो भी इन्हीं के हैं या जमात इस्लामी के हैं। तो हमारे जो अरकान, अभी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि आज से 15 रोज पहले जो तड्डो डैम टूटा था, वहां से पानी आया था सुपर हाईवे पर, वहां से कुछ आबादियां मुतासिर हुई थी जी। और वहाँ पे स्कीम 33 पूरी मुतासिर हुई थी। स्कीम 33 में घुटनों से ऊपर पानी जमा था। सुने जी, सुरजानी, ऐसे बहुत से इलाके सादी टाउन वगैरह सारा। वहाँ हमारे ही अरकान असेंबली थे मैदान अमल में, जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे बिला किसी तफरीक, बिला कोई रवा रखे हुए, फर्क रवा रखे बगैर। तो बात ये है कि वहाँ पे ना सिर्फ उन लोगों को रेस्क्यू किया, स्कूल में उनके कैंप कायम किए, उनको खाने पीने का उनके लिए बंदोबस्त किया, उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो एमक्यूएम गाफिल नहीं है, एमक्यूएम अपना किरदार अदा कर रही है। अब तो ये सवाल उनसे बनता है जो लोग 18 साल से हुकूमत कर रहे हैं। शहरी हुकूमत उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है। अब देखे ना, कोई पूछने वाला तो इनसे 18 साल हो गए। आप लोग हर साल आप लोग भी प्रोग्राम करते हैं, लोग कराची के शहरी बेयारो मददगार अब घंटों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मोटर बाइक गरीब लोगों की बेचारी
वो लोग खराब हो जाती है, गाड़ियों का फ्यूल खत्म हो जाता ठीक है। एम्बुलेंस फंस जाती है, इस कदर लोग परेशान है। मैं क्या शबीर साहब बताऊं? आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब भी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। राना गुलजार ताज साहब, आपने भी सुनी गुफ्तगू शबीर साहब की, कुछ बातें तो बहरहाल सही हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उन पे तो आप हर सूरत एग्री करेंगे, मुझे लगता है कि आप भी ज़ाहिर है आवाम के नुमाइंदे हैं, आप इस चीज़ को मानेंगे। आपके मेयर कहाँ चले जाते हैं? ना डिप्टी मेयर नजर आ रहे हैं, ना मेयर नजर आ रहे हैं, ना कोई और नजर आ रहा है, ना सीएम नजर आ रहे हैं, कहाँ है सब है वैसे? मतलब मैं नहीं पूछ रही, ये तो आवाम देखिए, पूछती है। बात ये है सब यही हैं और मैं ये समझता हूँ कि हम इक़्तिदार में हैं, हम पर बाहरी जिम्मेदारी होती है और शबीर भाई सही कह रहे हैं, जिस इक़्तिदार में होते हैं उन्हीं पर ही ये जिम्मेदारी होती है और उनकी गोलाबारी दुरुस्त है और हमें सुननी भी चाहिए, मगर उसमें इस्लाह तलाश करनी चाहिए। ठीक है। उसमें हमें उन पे कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आवाम की खिदमत की है, शुक्रिया, मेहरबानी, जाहिर है जो जिससे हो सकता है वो कर रहा है। मेयर साहब को यानी भी- आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकता इसलिए वो नहीं कर रहे? नहीं, देखिए वो भी एक जमात है। अच्छा। और वो भी एक आवाम की खिदमत का नारा है उनके पास और वो भी एक जज्बा रखते हैं, तो उन्होंने भी अपने तौर पे जो खिदमत की है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात पे, शुक्रिया, आवाम की खिदमत की है उन्होंने। किससे खिदमत की है? जैसे अभी स्कीम 33 की बताई ना कि भाई हमारे MP MLA ने खिदमत की है, उनकी अच्छा। उनको तो भाई मेहरबानी, ठीक बहुत है। अच्छी बात है। ठीक है। तो बात ये है कि मेयर कराची बिल्कुल कराची में हैं और अपनी जगह वो काम भी कर रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं, डिप्टी मेयर भी मौजूद है, तमाम टाउन UC मौजूद है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये जो ऑफिस में बैठकर कुछ लोग, आज भी मैं किसी से मिला तो वो कहते जी हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हम इख्तिदार में और किसके वो पास है ये वो- आखिर इख्तियार मैं- की चिड़िया किसके मैं पास है? गुजारिश कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा आप ये बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बात आप ना करें। देखिए बात ये है कि बिल्कुल हम 17 साल से इख्तिदार में हैं और ये पार्टी को अवाम की मेहरबानी है कि उन्होंने वोट दिया है, तो अवाम हमसे सवाल कर रही है कि भाई आप ये काम करें, अब पीने का पानी चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो हम जो काम जो कर रहे हैं उसको सही तरीके से किया जाए। काम हो भी रहा है लेकिन आधे से ज़्यादा करप्शन हो रही है, तो करप्शन जो है वो उस चीज़ को डुबा रही है, ख़राब कर रही है। मैं आपसे गुजारिश यही कर रहा हूँ कि करप्शन कर कौन रहा है, तो उन करप्ट को पकड़ा जाए। ठीक है। जब देखिए कोई ठीक है, करप्ट को चीज़ पकड़ा देखी जाए। ठीक है राना साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप हर प्रोग्राम में ज़रूर इस बात को कहते हैं कि अपने अगर हर शख्स जिम्मेदारी निभा ले तो बहुत कुछ मामलात ठीक हो जाते हैं। अशरफ साहब से भी ज़रूर बात कर लेते हैं। अशरफ साहब, क्योंकि आपका जो ताल्लुक़ है वो बिजनेस कम्युनिटी से भी है, अब जो शहर की सूरत हाल है, जो ये डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट कहा जाएगा वो तो खैर कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन बहरहाल जो ये डिज़ास्टर हुआ है इस वक्त पूरे शहर में, जी हाँ, सबसे ज़्यादा मुतासिर ताजिर बरादरी है और छोटा ताजिर तो समझे ख़त्म हो गया, क्योंकि बड़ा जो ये बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं उससे वैसे ही उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई और उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि अब ये जो जाहिर है जब इतना गंदा पानी सड़कों पर होगा तो कौन आएगा, कहाँ लोग निकलेंगे शॉपिंग या किसी चीज़ के लिए। तो इसको जो सरमायादार है वो कैसे देखता है, वो फिर वो सारा सरमाया लपेट के निकल जाएगा क्या? निकल गया। आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें अभी ये 2 साल के अंदर जितना सरमाया जो निकला है ना, क्योंकि किसी वक्त ये था कि दुबई के अंदर हालात इतने अच्छे नहीं थे, खास तौर पे कंस्ट्रक्शन के। अभी वहाँ पे अच्छा खासा जो है ना बूम है और अच्छे खासी लोगों को वहाँ एडवांटेज मिल रहे हैं। अच्छा, सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट को या यहाँ के इन्वेस्टर को सपोर्ट कर रहा है। सऊदी भी सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, ये इस तक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यहाँ जो अब आप बात कर रहे थे ना छोटे दुकानदारों की, तो मुझे अभी याद आया कि ये मीना बाजार के अतराफ में या जहाँ जहाँ ये आपके ये जो ग्रीन बस और ब्लू बस और येलो बस और जो बन रही हैं, उसके आसपास जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानों की करोड़ों में होती थी, अब वहाँ चलने की जगह नहीं है, तो दुकानों में बेचारे रेंट वाला आदमी तो फौरन भाग गया, 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए रेंट दे रहा था,
تو سراؤنڈنگ تو ساری تباہ ہو گئی. اچھا اسے چھوڑیں, وہ جو فلیٹ ہے اطراف میں, تو وہ لوگوں کو راستہ ہی نہیں ہے, پروپر گاڑی جا ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ اس کے لیے بائی پاس بنا رہے ہیں, روڈ بنا رہے ہیں, یا جو بھی انڈر پاس بن رہے ہیں. تو یہ جو جتنا بھی ٹائم ہے, دیکھیں جو ٹائم پیریڈ تھا نا اس سے اب ڈبل ہو گیا ہے. وہ کاسٹ تو چھوڑ دیں جو کاسٹ ہے, تو سفر جو کر رہا ہے عام آدمی کر رہا ہے, اور چھوٹا طبقہ زیادہ کر رہا ہے. اور اس کی تباہی ہونے سے ہوگا یہ کہ یہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ بے روزگاری جب بڑھے گی تو یہ لوگ کہیں نہ کہیں تو اس کا اپنا غصہ نکالیں گے. تو مجھے تو آنے والا وقت ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے لوگ اب جب الیکشن ہوں گے تو یہ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. جتنا غصہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی میں مائک لے کے کھڑی ہو جاؤں, کسی موٹر سائیکل والے سے بات کروں تو وہ غصے میں گالیاں نکالے گا, کیونکہ اس کا جو رویہ یا اس کا جو بیہیویئر ہے اس وقت جس طرح کے لہجہ خاصا تلخ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہی وجہ ہے. ٹینشن اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ مل نہیں رہا نا, ہر طرف یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور روزگار دن بدن لوگوں کا تنگ ہوتا جا رہا ہے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. شبیر صاحب سے بھی بات پولیٹیسائز نہیں کر رہے ہم, یہ فیکٹس ہیں اور یہ سب کو نظر آتا ہے. بالکل بالکل. شبیر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. شبیر صاحب, ابھی اشرف صاحب نے جو بات کی کہ جتنی یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, جو بسز لانچ کی جا رہی ہیں, یہ اتنا ٹائم فریم اتنا بڑھ چکا ہے, کوئی بھی منصوبہ جو لمیٹڈ ٹائم اس کا دیا گیا تھا اس میں مکمل نہیں ہو رہا, اور اب پھر وہ درمیان میں کچھ منصوبوں کو روک دیا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی امید ہو سکتی ہے؟ جب آپ فرما رہی ہیں کہ منصوبوں پہ کچھ منصوبوں پہ کام روک دیا گیا ہے اور سست روی کا شکار ہے, تو پھر بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ بالکل بجا فرمایا, اشرف بھائی نے بھی بجا فرمایا کہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس طرح سست روی کا شکار نہیں ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ اس کی مثال لے لیں, جو ریل لائن, یہ کون سی وہ جو لائن ہے جو یونیورسٹی روڈ سے آ رہی ہے, کتنے سال ہو گئے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ ذہنی مریض ہو گئے. جو لوگ اس طرح سپورا کی طرف سے آتے ہیں, جن کو شہر آنا ہوتا ہے, وہ کتنے گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں, کس عذاب سے گزر رہے ہیں, اس بات کی ہمیں, اس تکلیف کا ہمیں اندازہ ہے. لیکن حکومت کو کوئی اندازہ نہیں ہے. 12 ٹی وی پروگرام میں آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں, سب لوگ کہہ رہے ہیں, تمام سیاسی پارٹیوں پریس کانفرنس کر چکی ہیں, کہہ چکی ہیں, لیکن حکومت کے کوئی جو تک نہیں کر رہی. ان کے کانوں کے اوپر ایک عجیب سی وہ صورتحال ہے. دوسری بات یہ کہ جو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی, ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس قدر ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں, یعنی غلط کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رانا گلزار بھائی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی, انہوں نے بڑی معقول بات کی. اور سب سے بڑی بات ہے کرپشن کی نظر. دیکھو اتنے پیسے لگتے ہیں اس شہر کے اوپر, جو رسول بلا دے, جو اتنا ٹیکس دیتا ہے, لیکن وہ پیسے روڈ بن رہے ہیں, افسرکاری ہوتی ہے, وہ دوسرے دن وہ کھوٹ جاتی ہے. تو یہ تو سب کرپشن کے نظر ہو رہے ہیں. اس کی مثال آپ دیکھیں, شارع بھٹو, ایک کتنا بڑا پروجیکٹ تھا شارع بھٹو, جو ایک بارش میں بھی وہ شارع بھٹو کئی جگہ سے بہ گیا. تو جب آپ اگر کوئی سچی بات کرتے ہیں, ان کو آئینہ دکھاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو, تو پھر یہ ان کے اتنے کئی درجن ان کے اسپوک مین ہیں, وہ آ جاتے ہیں میدان کے اندر. ان کو رکھا ہوا اس لیے ہے کہ وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کریں, جھوٹا یا سچا. تو مجھے اچھا لگا ان کی بات کہ جو حق بات ہے وہ کہنی چاہیے, کہ جو نظر, جو پیسہ ہے نا, وہ جو 18 سال سے 17 سال سے جی یہ بالکل کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو شہر ترقی نہیں کر رہا ہے, یا آج جو صوبہ ترقی نہیں کر رہا ہے. کراچی کو تو آپ چھوڑیں, کراچی کو چھوڑیں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے ہیں, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی جن علاقوں میں بھاری ووٹوں سے جیتتی رہی ہے, ان علاقوں میں بھی آپ جا دیکھ رہے ہیں, وہاں کون سی انہوں نے دودھ کی نہریں باندھی ہیں, شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. وہاں کے لوگ بھی پریشان ہیں, وہاں کے عوام بھی پریشان ہیں. تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیا. 17 سال 18 سال کم نہیں ہوتے ہیں. اگر یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ویژن نہیں ہے. اچھا شبیر صاحب, یہ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی صاحب نے وزیر اعلیٰ کو جو خط لکھا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ڈیزاسٹر کمیشن نہیں ابھی تک بنا ہے, تو یہ جو NDMA کی ایکٹ 10 کی خلاف ورزی ہے کچھ, یہ ذرا فرمائیے گا کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھو معاملہ یہ جو کمیشن بننا تھا نا ایک رول کے مطابق, وہ یہ نہیں بنا رہے نا. اصل میں کیا کہ ان کو کرپشن, ان کو اپنی کرپشن چھپانی ہے. اچھا, یہی وجہ ہے کہ یہ اس بات کو ایکسپوز نہیں چاہتے, کوئی چیز ایکسپوز ہو. تو یہ کام نہ خود کرتے ہیں, اور جو کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں, یا تو چلو بھائی اگر آپ اس شہر کے, اس صوبے کے اگر آپ خیر خواہ ہیں تو سیاست سے ایک مرتبہ ہٹ جائیں. سیاست سے ہٹ کر آپ اپوزیشن والا بھی آپ کے بھائی دشمن نہیں ہیں,
हम भी चाहते हैं कि हम मिलकर इस सूबे की खिदमत करें। इस सूबे की बाबुल इस्लाम है, ये हमारा सूबा, ये इस्लाम का दर है और ये शाह लतीफ की धरती है जिन्होंने हमेशा अमन और का दर्ज दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि हमें अपना समझें और अपना समझकर हमसे भी काम लें। लेकिन ये पता नहीं क्यों हमें अपना दुश्मन समझते हैं। जब हम सच बात करते हैं, जब हम इनको आईना दिखाते हैं, जब हम अपने हकूक की बात करते हैं, जब अपनी राइट्स की बात करते हैं, तो इसको ये समझते हैं कि शायद हम लोग कोई सिंध के खिलाफ है। खुदा न खास्ता, नहीं भाई, हम 12 कह चुके हैं, सिंध हमारा सूबा है, सिंध हमारी धरती है, हमें यहीं जीना, यहीं मरना है, हमें कहीं नहीं जाना है। खुदा रहे हमें अपना समझें और अपना समझकर, अपना भाई समझकर हमें भी काम दें, हमसे भी काम लें, ताकि हम मिलकर इस सूबे की खिदमत करें। लेकिन काश ये बात इनके समझ में आ जाए। जब जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो ये सूबा बेहतरीन तरक्की करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करूंगी मैं राना गुलजार ताज साहब से। राना साहब, अभी जो शबीर कायम खानी साहब बात कह रहे थे कि भाई आप हमें भी अपने साथ मिलाएं, आप समझें कि हम भी इस शहर में रहने वाले लोग हैं, हम नुमाइंदा जमात हैं, हमारी नुमाइंदगी है, तो हमें आप साथ लेके चलें। एक तरफ तो इलेक्शन का बायकॉट, दूसरी तरफ फिर साथ चलने के लिए कहना, और आपका जो रवैया है वो सारे काम हमने खुद करने हैं, सारे फैसले हमने खुद करने हैं, तो मामला कैसे हल होंगे? देखिए जी, जो इलेक्शन से बाइकआउट किया था एमक्यूएम के दोस्तों ने, तो वो तो अपनी मर्जी से किया था, हमारी मर्जी, और हमने तो आखिर तक इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप इलेक्शन से बाहर ना जाएं, आप पार्लिमानी पार्टी हैं, आप अवामी पार्टी हैं, आप आएँ। तो हमने तो आखिर तक इनसे डायलॉग भी किए कि आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन ये इलेक्शन से बाहर रहे, फिर इनके अपने फैसले हैं वो। हमने तो हमेशा इलेक्शन की सियासत की है और हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई लड़ाई झगड़ा, इस चीज़ को सियासत में अच्छी चीज़ नहीं है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम हमारा को पसंद नहीं करते। और जहाँ तक साथ हमारे भाई हैं, हम इनको आज भी गले लगाते हैं और हमेशा इनको गले लगाया है, लेकिन इनकी तरफ से ऐसी गोलाबारियां शुरू होती हैं जो फिर वो नाज़ेबार कुछ दूरियां पैदा होती हैं। तो सियासत में दूरियां पैदा नहीं होनी चाहिए। हमने हमेशा सब लोगों को साथ रखा है और रखते हैं, और इनको कदर की निगाह से देखते हैं। हर पॉलिटिकल वर्कर को कदर की निगाह से देखती पीपल्स पार्टी, ऐसी बात नहीं है। अभी जो सीएम पंजाब ने जो कितनी कड़ी तनकीद की है, जो क्या उन्होंने तकरीरें की हैं, तो आप अभी भी इत्तेहाद में रहेंगे उनके साथ? देखिए जी, ये तो बड़ों का फैसला है और मैं ये समझता हूँ कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। वो अगर कह रही हैं, अगर कोई अच्छी बात होगी तो हम उनकी सुनेंगे, अगर वो कोई गलत बात करेंगी तो हम उसको नहीं सुनेंगे और हमें सुनना भी नहीं चाहिए। अवाम के मफाद में जो भी बात होती है उस पर फैसले, और पार्टी का जो भी फैसला आएगा तो वो उस वक्त देखा जाएगा। वो उन्होंने जो भी कहा है तो पार्टी उस पर गौर कर रही होगी और कर रही है। बिल्कुल पार्टी गौर कर रही है और देखा जा रहा है। और रही जहां अलग और हुकूमत की बातें, ये तो बड़ों का फैसला जब आएगा तो फिर वो बात होगी। सवाल ये पैदा होता है कि हमें जब गुफ्तगू करते हैं तो उसमें सोचना चाहिए कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके असरात अवाम पर क्या पड़ेंगे, और जो शहर में सूरत हाल है उसमें आपस में कशीदगी पैदा ना हो। पीपल्स पार्टी ने तो ये फैसला कर लिया कि वजीर आजम साहब जब आएंगे तो ये तमाम मामला, तमाम चीजें जो है हम सामने रखेंगे और इस पर बाकायदा बात की जाएगी। तो ये जो अब सूबों के दरमियान में एक चपकलिश वाली जो कैफियत है, और खास तौर पर अब ये दो इत्तेहादी जिनके बलबूते पे तो सारी चीजें चल रही थी, अब इनमें ये इस तरह की दरारें जो हैं या इस तरह के ओपनली जो बयानात दिए जा रहे हैं, तो ये तो बड़े गलत असरात नहीं मुरतब करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये असरात इसके अच्छे नहीं होने, लेकिन इन द एंड जो है ना, ये इनका कंप्रोमाइज सेटलमेंट हो जाएगा। अच्छा। थोड़ी सी सर्जिश हो जाएगी बिलवास्ता तौर पे सही, तो वो अब इनकी जो गोलाबारी है जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब आ नहीं जाते, बिलावल भुट्टो साहब और जब ये शहबाज शरीफ साहब जब बैठेंगे, इससे पहले भी 2 दफा ऐसा हो चुका है, फिर उनके कुछ सेटलमेंट हो चुके हैं। असल में ये सारी इख्तिदार की जंग है ना। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को कहीं पे भी शेयरिंग नहीं दी जा रही। बजाय तो उन्होंने लास्ट ऐलान किया था कि कुछ मुशीर वजीर लेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं जी हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वो बिलवास्ता तौर पर कहते हैं कि हमारे इलाके में हमारी सेफ मानी जाए, जो भी वहाँ का
एडमिनिस्ट्रेशन है या दूसरे मामलात हैं, ठीक है। तो उनकी अपनी थोड़ी सी से होनी चाहिए। और ये हकीकत है कि जब ये मिलके चल रहे हैं तो उनको पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं बात रखनी पड़ेगी, और मुझे लगता है इनका सेटलमेंट हो जाएगा। जितनी एग्रेशन से इन्होंने पीपल्स पार्टी ने बात की है, तो फिर ये सारा मामला आके जब प्राइम मिनिस्टर के पास आता है तो ये सारा सेटलमेंट हो ही जाता है, और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इनके लिए ये नई चीज नहीं है। एक बात तो आप भी मानेंगे और लोग मानते हैं कि बहरहाल पंजाब में काम हुआ है। नहीं, उसको देखें, क्रिटिसाइज हम नहीं कर रहे। बात सारी क्या है कि वो वन साइडेड सारी चीजें हो रही है ना, तो उसको यही बात हो रही थी कि जैसे अभी इन्होंने कहा ना एमक्यूएम के साथ लेके चलने को तैयार हैं। असल में सब जगह होती है कि वो सीए के साथ उनकी शेयरिंग की जाए। अब वो शेयरिंग अजीब सा नहीं लगता कि मतलब 68 या 70% हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जाहिर है वहां पे भी जा रहा है, सूबों में एक पूल में आके सबको हिस्सा बट रहा है। जी हाँ। और जो कि कमा के दे रहा है वो सबसे ज्यादा दगड़दू हालात में। हाँ, तो उसकी यही तो वजह है कि हम लोग आपस में जो लड़ रहे हैं ना, हमारी यूनिटी अगर होती है ना तो हम अपने मामलात बहुत अच्छे से कर लेते। ये मामलात बहुत, अगर आप इसको देख रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो हमें इस तरह से ही डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये कराची का बिजनेसमैन, कराची का शहरी, कराची का पॉलिटिकल वर्कर, ये सारे का सारा जो डिस्टर्ब है, ये इसको अगर आप लिंक करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखें, सबसे ज्यादा फंड्स, अभी एक बात रिपोर्ट आई थी कुछ 6 महीने पहले कि लालू खेत का जितना आपका इनकम टैक्स जाता है उस इलाके का, उतना लाहौर देता है, पूरा लाहौर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात सुने, बिल्कुल, ये बात ये सही। कितनी और लालू खेत है क्या अगर हम और आप देखें तो। फिर आप उसको छोड़ दे, पूरे कराची जो है आपका 60%, 65% या 68% जो आपको ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो अब सारी चीजें वहीं जाके ठहर रही हैं। अभी आपको अभी सिंध का तो 90% दे रहा है। जी, अभी आ गया ना ये आपका जो बिन कासिम है, ये इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया। आने वाले वक्तों में इसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो यहाँ से होगा, जैसे कराची की एक बंदर का अभी तो प्रॉपर वर्किंग कर रही थी, अभी सेकंड जो पूरी चलेगी तो फंड्स कहीं से कहीं जाएंगे। अच्छा, ये तो खैर पॉलिटिकल, असल मसला इनका ये है कि इनको ईमानदारी से जो पावर्स हैं ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देनी होंगे, यूनियन काउंसिल तक जाने होंगे। अगर ये नहीं देंगे तो ये क्रिटिसाइज होंगे और ये करप्शन के दरवाजे ज्यादा खुलेंगे, और खुल रहे हैं। देखें, रोड एक बनती है, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एक बारिश का छींटा पड़ता है और रोड साफ हो जाती है। तो जो इख्तियार में जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो उनका बेनिफिट बिल वास्ता तौर पे वो पूरे का पूरा ले रहे हैं। ठीक है, यही मजा ले रहे हैं। तो वो मजा जब लोगों में बटेगा तो यकीनन उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी बढ़ेगी, आम आदमी उनसे पूछने का ज्यादा करीब होगा पूछने के लिए। अब ये हम क्या करते हैं कि वजीर आला या उनके मिनिस्टरों तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी टाइम लगता है, और वो उस पावर के साथ वो बात हो नहीं पाती। तो अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो एक नंबर, एक मैसेज से कहां से कहां। अभी आप देखिए, अभी के इलेक्ट्रिक को आपको कंप्लेन करना चाहें, आपको कंप्यूटराइज पे वो आपको आधा घंटा लेगा, इसके बाद आपको जवाब भी नहीं देगा। ये बात तो ये आप सारी चीजें छोड़ दें, आपके कितने कंप्लेंट सेंटर बने हुए हैं, कितनी सारे सिस्टम में सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। बल्कि ये है कि आपकी सिंध हुकूमत, पंजाब की हुकूमत अपडेट आपको सारे प्रोग्राम करने हैं, लेकिन जब आप उसको ऑन करेंगे तो पता चलेगा वो 2 साल पीछे का सारा चला हुआ है, अभी 2 साल का अपडेट भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो ये ढोंग है, असल चीज ये कि इनको चेक कौन करे, इनको बैलेंस कौन करे, इनको देखे कौन, और उन पे रिस्ट्रिक्शन कौन लगाए। मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ। एक डिप्टी मेयर साहब से भी जब बात हो रही थी ड्यूरिंग प्रोग्राम ही ऑन एयर, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बताइए और हम उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो सारी चीजें साइलेंट हो गई। मसला ये था कि सीनियर सिटीजन का जो कार्ड जो इशू कर रही है सिंध हुकूमत, उसके लिए रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि वो डाउनलोड होगा नेट से, और फिर उसके बाद उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगाएं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। हालांकि एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी कि बहुत छोटी सी बात है, आपके पास नादरा में सारी चीजों, हर शख्स का डाटा मौजूद है। जो 60 साल से ऊपर हुआ है, आपके पास वो डाटा मौजूद है। ऑटोमेटिकली आपको वो आईडी कार्ड के साथ आपको कॉल करनी चाहिए उसको कि भाई आपका कार्ड बन गया है, इस एड्रेस पे आपको डिलीवर कर दिया जाए। यही बात है, तो बहुत आसान सी बात। किसी डॉक्यूमेंट, क्योंकि कितनी आवाम पढ़ी लिखी है जो नेट इस्तेमाल करके 60 साल का, कौन वो शख्स होगा जो नेट इस्तेमाल करके
دنیا میں آپ کہیں پہ بھی ڈاؤن لوڈ جاتے ہیں۔ کرے گا، پھر اس پہ وہ سارے ڈاکومنٹیشن کرے گا۔ شمائلہ آپ دیکھیں جہاں جو ملک ہیں اپنے شہری کا، اپنے سٹیزنز کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کسی کو کہنا نہیں پڑتا، اس کو ان ٹائم اس کو وہ چیز اویلیبل ہو جاتی ہے۔ بالکل آپ اور ہم دنیا میں بیٹھے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ دبئی کوئی 20 سال پہلے کہاں تھا، یا آپ کے یہ آپ کے جو عرب ممالک کہاں تھے، یا آپ کے ایسٹ ایشیا والے ملک کہاں تھے، اب اتنا ان کا ایکیوریٹ سب آگے نکل گئے، جو آگے نکل رہا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں بار بار جو کہہ رہا ہوں نا ایڈمنسٹریشن فیلئر، وہ کیوں کہتا ہوں میں ایڈمنسٹریشن فیلئر؟ یوں کہتا ہوں کہ دیکھیے ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ میں جو بیوروکریسی بیٹھی ہے نا وہ آپ کے ماتحت ہے، آپ ان سے وہ ایسی پالیسی کیوں بنواتے ہیں کہ جو اتنی سخت پالیسی ہو جو عوام اس پہ پورا نہ اتر سکے؟ وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ اس میں کرپشن کرتے ہیں، تو یہ نااہلی ہوتی ہے۔ یہ اس میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں ابھی آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج بھی ایک عوام کا ایک بہت بڑا احتجاج ہوا میرے آفس میں، اورنگ ٹاؤن میں گلشن ضیاء کا علاقہ ہے، وہاں پہ غریبوں کو رات کے 3 بجے جو وہاں کے گنڈا عناصر ہیں وہ گھروں سے نکال رہے ہیں، اور جو اورنگ ٹاؤن کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے وہ ان کو قبضہ کروا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ہائی کورٹ کا جھوٹا نام لے رہا ہے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، ہائی کورٹ کوئی بھی مطلب وہ نہیں کرتا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس پروجیکٹ ڈائریکٹر کو میئر صاحب یہ تک نہیں پوچھ رہے کہ وہ کورٹ کا آرڈر لائیے کہاں ہے جو آپ نے کام کیا ہے، اور وہاں پہ خاتون کا ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، آسمہ نام خاتون کا، ان کا سر پھاڑ دیا گیا۔ آج ہی ان کے وہاں غریب لوگ ہیں، 6 لوگوں کی FIR بھی کٹوا دی گئی، تو کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ ظلم، یہ میئر صاحب جو ہے جو اورنگی ٹاؤن کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے وہ ایک ایسا لال لگام انسان بنا ہوا ہے، اور جس کی مرضی وہ FIR کٹواتا ہے خط لکھ کر، یہ قابل مذمت ہے۔ اور دیکھیں ان غریبوں کو بچایا جائے میئر صاحب، جن لوگوں کو گھروں سے راتوں کو نکالا جا رہا ہے، وہ غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے بہت شکریہ۔ محمد اشرف میمن صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ۔ شبیر قائم خانی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین ایک اسٹوڈنٹ کی ایک سجیشن ہے کہ معاملات جو ہیں کہ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے اگر صرف ایک آرڈر پاس کر دیا جائے کہ جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں، اب ان میں کوئی CM ہے، کوئی منسٹر ہے، جو بھی ہے واٹ ایور جو بھی ہے، کسی بھی کوئی بھی عہدیدار ہے، وہ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائے گا، سرکاری اسپتال میں وہ اپنا علاج کروائے گا، اور وہ ان علاقوں میں ہی رہائش اختیار کرے گا جہاں پہ ایک نارمل جو لوگ جو مڈل طبقہ وہاں پہ رہائش پذیر ہوتا ہے، تب ہی جا کے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ یہ طالب علم نے سجیشن دی، اور بالکل ہم بات کر سکتے تھے لیکن وقت اب بالکل ختم ہو چکا ہے، بڑی معذرت اشرف صاحب۔ ناظرین آپ بھی سوچیے گا اور میں بھی سوچتی ہوں کہ کتنا قابل عمل ہے یہ تجویز۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔